children's, open your book, Genesis, page number 8, lesson 2, water, unit 4, our environment. Water is very important for us to live. About 3/4 of our earth is covered with water. Different type of water bodies like a pond, river, lake, sea, ocean, etc. are found on the earth. हमारे जीवन के लिए पानी बहुत ही ज़रूरी होता है और पूरी पृथ्वी के ऊपर, पूरी अर्थ के ऊपर हम देखें तो 3/4 पार्ट वाटर का प्रेजेंट है। और ये किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होता है? ये लैक, रिवर, पॉन्ड्स, ओशन और सी की फॉर्म में प्रेजेंट है। नाउ टाइप ऑफ वाटर बॉडीज। पॉन्ड, ए स्मॉल area having a water is known as a pond. A pond often dries up in the summer. Mostly pond are seen in villages. pond बहुत ही छोटा वाटर एरिया होता है और ये ज़्यादातर समर सीज़न में सूख जाता है और ये विलेजेस में ही देखने के लिए ज़्यादातर हमें मिलता है। इसके बाद हम आते हैं लैक पे। A slightly bigger water body surrounded by land on all the sides are known as lake. Some lakes supply water to towns. We can also go for boating to lakes. Some famous lakes in our country are the Dal Lake in Srinagar, the Chilka Lake in Odisha and the Sukna Lake in Chandigarh. लैक से पॉन्ड से थोड़ा बिगर वाटर बॉडी होती है जो कि आसपास से लैंड से सराउंडेड होती है और यहीं से वाटर सप्लाई टाउन में किया जाता है। इसमें हम लैक्स में हम बोटिंग भी कर सकते हैं और ऐसी फेमस कुछ लैक्स हैं जैसे कि डल लैक इन श्रीनगर और चिल्का लैक इन उड़ीसा एंड सुखना लैक इन चंडीगढ़। Do you know? The Caspian Sea is not a sea but a lake. It is the largest lake in a world. Now river. A river is a very large water body that start from mountain or hills and continuously flow down the plains. It finally meet to sea. Some big rivers in the India are the Ganga or the Yamuna, Narmada and Godavari. रिवर्स है, ये लैक से थोड़ी लार्ज वाटर बॉडी होती है जो कि माउंटेन या हिल से स्टार्ट होती है और कंटिन्यूसली फ्लो होती जाती है, प्लेन्स पे आ जाती हैं और फाइनली ये ओशंस में या सीज में जाके मिलती हैं। और ऐसी ही कुछ बड़ी नदियां हैं हमारे यहाँ पे जैसे गंगा, यमुना, नर्मदा और गोदावरी। देन सी एंड ओशंस। A huge water body having a salt water is known as sea. The sea is bounded on one side by the salty land called sea coast. Beautiful sandy coast are called beaches where the pupils like to go for walk, rest and play. Some famous Indian seas are Arabian Sea and the Bay of Bengal. A very huge sea is known as oceans. The Indian oceans, the Pacific oceans, etc. are some good example. Ship sails both on the seas and oceans. Salty water वाली huge water bodies को हम sea कहते हैं और ये sea एक साइड से सैंडी लैंड से कवर्ड होती है जिसे कि सी कोस्ट कहा जाता है और सी कोस्ट को ही हम बीचेस कहते हैं। यहाँ पर पीपल्स हैं वॉक करना, रेस्ट करना और प्ले करना पसंद करते हैं। कुछ फेमस इंडियन सीज हैं अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। ऐसे ही जो बहुत बड़े ह्यूज सी होते हैं उन्हें हम ओशियंस कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशंस। सीज और ओशंस के अंदर शिप्स भी चलती हैं। देन एक्टिविटी। क्रॉस आउट द पिक्चर्स वेयर वाटर इज बीइंग वेस्टेड।
See here where the water is wasted. Tick here, cross here, cross again. Water is precious. 70% of earth is covered with water, but all the water is not fit for drinking. Most of the water found on the earth is seawater, that is salty. It cannot be used for drinking and farming. Water from the river and the lake is the fresh and is pumped out and purified. This is used for drinking purpose, for farming and other needs. अर्थ 70% वाटर से कवर्ड है, बट सारा का सारा पानी है वो ड्रिंकिंग के लिए फिट नहीं होता है, क्योंकि ये सॉल्टी वाटर है और सॉल्टी वाटर को हम ड्रिंकिंग और फार्मिंग में यूज़ नहीं कर सकते हैं. सो जो रिवर और लेक का वाटर होता है, केवल 1% वाटर, वो ही केवल हम फ्रेश वाटर की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं. और इससे भी हमें पहले प्यूरीफाई करना होगा, उसके बाद हम इसे ड्रिंकिंग पर्पस या हमारी जो अदर नीड्स हैं उसमें हम यूज़ कर सकेंगे. ड्रिंकिंग वाटर शुड बी फ्री फ्रॉम germs and impurities. We should follow some precautionary measures while using water. Water should be stored in a clean utensil. Drinking water should be boiled or filtered. Drinking water should be kept covered. We should not waste water as it is very precious. And lastly, we should not pollute water by throwing garbage and waste into the pond, river, lakes and seas. So ड्रिंकिंग वाटर को हमें पहले जर्म फ्री और प्यूरीफाई करना होगा, तभी हम उसे ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं. सो हमें कुछ सेफ्टी मेजर्स यहाँ यूज़ करने होंगे. लाइक वाटर है, उसे हमें क्लीन यूटेंसिल्स में स्टोर करना है. साथ में हमें उसे ड्रिंकिंग वाटर बनाने के लिए बॉइल्ड और फिल्टर भी करना ज़रूरी है. और हमें इसके बाद में उसे कवर्ड करके रखना चाहिए. साथ में ही वाटर बहुत ही प्रीशियस है, इसलिए हमें उसे वेस्ट नहीं करना है. और लास्ट में हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि वाटर पॉल्यूटेड नहीं हो, तो हमें उसके लिए उसमें गार्बेज और वेस्ट मटेरियल नहीं डालने हैं. थैंक यू.